We have with us Sri. There is a small request. Can you take that lectern little inside so that we are able to see the presentation very clearly? Okay. After just I finish. Yeah. Right. So we have with us today for the last session, Sri Atul Kirwadkar sir. Let me introduce. He is into banking for over 41 years, and of which he has 15 years of experience at public sector bank and 26 years in cooperative banking sector. He has been one of the principal resource persons for Banco for the last 8 years. He is the MD and CEO of a leading multi-state scheduled cooperative bank for last 13 years. Has been helping the sector to ensure compliances of regulatory regulatory norms. Has conducted 32 webinars during COVID-19 pandemic on various subjects. He is also faculty at various institutions including RBI, CAB, VAMNICOM, NAFCUP, etc., various colleges and management institutes. He is also actively involved in Indian government body IIBM, promoted by RBI on banking course curriculum. He is one of the thought leaders in banking industry. Postgraduate in commerce, CAIIB, one certificate systems analyst, certified treasury manager, and an expert banker. Has won many awards and accolades at national level. So today, before we get an opportunity to listen to him, I request Avinash Shintreji and Ashok Naikji to please felicitate Sri Atul Kirwadkar. Today, the subject on which he'll address is key points impacting UCBs. Thank you. Thank you, Abhijit. I have been given 45 minutes to talk to you. This is the 6th straight year where I try to engage you on the developments that are happening in the urban cooperative banking sector. I wish Mangesh Kinkre should have been here. Has he left? He has left. He is here. Okay. As an urban cooperative banker, the subject of ARC that he has presented, I have a different perspective. I'll talk a little bit on that first. He has talked about one of the ways where you can reduce your gross NPAs. But you must remember that as far as ARCs are concerned, there are two guidelines. The first guideline was in 2014. And the latest guidelines which has come under the transfer of loan exposure, which is a big 80-page circular, 24th September circular. Now this circular and the 2014 circular has huge difference. And one of the difference which I find is that selling to ARC is not in the interest of UCBs. I'm sorry, I'm going to give you a completely tangent view. We had sold assets, as a banker, we had sold assets to ARCs, but under 2014 guidelines. There's a major shift in the thought process.
If you remember, SARFAESI Act came into place somewhere in 2000, 2001. 2014, 15, 16, the ARCs started becoming very aggressive. And it was only the multi-state banks which were permitted to sell the non-performing assets to ARCs. Now, this recent master circle allows the banks to sell even the standard asset. Of course, not for the urban cooperative banks, but the commercial banks can even sell their standard assets to the securitization companies in case they are having liquidity issues. Having said that, the key position which you must remember is that in 2014, after selling the asset, if the asset is not recovered, say within a period of 8 years, it enters back into your book via IDR. If the ARC fails to recover the asset that you have sold, it comes back to you after a period of 8 years, presuming that you have given a time of 8 years to ARCs, and if ARCs fail to recover, it comes back to you because you sell deadwood to the ARCs. Except temporarily having a breathing time, you can use the ARC mechanism, not as a long-term solution. This is my personal view. Because after 8 years, if it is going to enter your books via IDR, then you had it. The banks which had sold under the 2014 guidelines are facing the heat of that moment. This is part one. The part two is, if you sell it to ARC now, there is a clause 77 in that master guidelines. You can refer to that clause very peacefully. And you will find that after selling the asset to ARC, the asset is out of your books. But you still have to make a provision over and above 10% as if the asset is in your books. वो थोड़ा confusing है, मैं थोड़ा clear करता हूँ. 100 रुपए के एसेट आपने ARC को बेच दिए आज नए गाइडलाइंस के अंतर्गत, और आपका SR हो गया उसमें 85 रुपीस का. इसका मतलब ये है कि 10% ऑफ 85 रुपीस, दैट इज 8.5 रुपीस के ऊपर जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके बुक्स में वो लोन अकाउंट के बारे में होगा, उसका IRAC नाम से जो स्टेज आपके बुक्स में होगा, वो डिफरेंशियल प्रोविजन आपको करनी पड़ेगी. उसके ऊपर अलग सेशन हो सकता है. बट इफ यू वांट टू सेल टू ARC, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. प्रेफर्ड ऑप्शन इज सेल इट इन कैश. If you sell it in cash, this idea of provision does not arise. But who will buy it in cash? Nobody. No ARCs are willing to buy things from you in cash. They have internal guidelines. अगर urban cooperative banks के से asset आने वाला है तो उसका value 40% discount करो, उसके बाद में NBV decide करो. This being the reality, as a urban cooperative banker, you must understand these guidelines well and then take a decision of reducing the ARCs. What are the other options? That could be a different way of looking at this entire story. This open house session which I have been conducting for the last 6 years in Banco, I have always kept it open wherever I look to it to respond to you on the questions that you face in day-to-day management of your bank, and I try to answer it the way I perceive could be a best solution for you and for your bank. When we met last time in Mysore, I had talked about on various guidelines which were issued by Reserve Bank of India post BR Act amendment. The world is changing. For us, the world is changing. And it is changing not for the better, it is changing otherwise. आपने वो अमिताभ बच्चन और रेखा का एक पिक्चर का नाम सुना होगा, सिलसिला. उसमें एक गाना है, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते. वी आर टुगेदर इन दिस. ये कहाँ आ गए हैं.
और जब मैं इस गाने को सोचता हूँ तो मुझे हर बार ऐसे ही लगता है कि द जर्नी दैट वी हैव बीन अंडरटेकिंग फॉर द लास्ट 100 years, we are not changing. And if we are not changing, we are digging our grave. Regulation has changed. You all know that, how it has changed. Suddenly, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिजर्व बैंक ने आपको परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने अगस्त में जब बैंक का सेमिनार हुआ था, वो 2020 के बेसिस पे जब हुआ था, तो मैंने पेनल्टीज़ के ऊपर एक 20 मिनट का पिक्चर आपके सामने रखा था। कुछ लोग उस वक्त शायद हाजिर थे, और मैंने ये कहा था कि रिजर्व बैंक पेनल्टी किस तरह से लगा रही है, कैसे लगा रही है। और 2017 में रिजर्व बैंक ने इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट चालू कर दिया। वो जब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट चालू कर दिया, इफ़ देयर इज़ अ वायलेशन, योर यूबीडी और डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन एंड रेगुलेशन, ये कोई काम के नहीं आते। आपके जितने भी दोस्त रिजर्व बैंक में हैं, दे विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट लुक्स एट इट डिफरेंटली। गलती की है, पेनल्टी लगाओ। क्वांटम ऑफ पेनल्टी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर BR एक्ट, प्रॉब्ली सेक्शन 44 या 46 होगा। पेनल्टी कैसे लगती है वो डिफाइन हो गया। आपने गलती की, बात खत्म। There will be a process. Reserve Bank of India will certainly conduct a process. It will issue show cause. It will call explanations. तो बीच में जो हमारे अविनाश जी शिंत्रे हैं, इन्होंने मुझे एक सवाल पूछा और मुझे एक राइटअप देने को कहा। वो सवाल ऐसा था कि यार, ये रिजर्व बैंक के लोग इतने पेनल्टीज लगा रहे हैं, तो ये पेनल्टीज से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सुधरेंगी क्या? आपका क्या कहना है? वो क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ, एग्जैक्ट वर्ड्स शायद अलग होंगे। और मैं सोचने लगा कि ये पेनल्टी से हम लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हम लोग क्यों नहीं सुधरने वाले हैं? सीधी बात, नो बकवास। तुम्हारे जो मेंबर्स हैं ना, उनको आदत हो गई है पेनल्टी की। एक ज़माना था पेनल्टी लगने के बाद हम लोग परेशान होते थे, आज नहीं होते हैं। वो पेनल्टी 5 लाख की हो, 50 लाख की हो, कुछ भी हो, हम मेंबर्स को डिफेंड करते हैं। क्योंकि वो पेनल्टी का जो प्रेस रिलीज आता है रिजर्व बैंक का, उसमें कुछ सेंटेंसेस लिखे होते हैं। एक सेंटेंस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो सेंटेंस ये कहता है कि भाई, ये पेनल्टी लग गई है, इसका मतलब इनका लाइसेंस नहीं कैंसिल हुआ है, ये बैंकिंग कर सकते हैं। तो व्हाट बैंक स्टार्टेड डूइंग, बैंक स्टार्टेड टेकिंग अ डिफेंस कि भाई पेनल्टी लग गया तो छोटी गलती होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम गलत बैंक है या फिर हमारे यहाँ फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा ये खुद का मानना है कि पेनल्टीज विल नॉट इम्प्रूव अस, इट्स ओनली द सेल्फ रियलाइजेशन दैट विल मेक अस चेंज। आप याद रखो, देयर आर 1400 बैंक्स, and somebody said in the afternoon session that there are 2000 banks. No, there are no 2000 banks, there are 1400 banks roughly. वो 1400 में से 400 बैंक गई गुजरी हैं, वो C और D में है। आप कोई C और D में नहीं है, क्योंकि आप अगर C और D में होते तो यहाँ पे हाजिर नहीं होते। You wouldn't have been present here had you been C or in D. इसका मतलब ये है कि these 400 banks are now virtually facing extinction. How is that? आप सब लोगों ने, आप किसी न किसी बैंकिंग ग्रुप में होंगे। परसों 2-3 दिन पहले रिजर्व बैंक का एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हुआ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया होगा। आपने पढ़ा नहीं है? वो 300 पन्ने कौन पढ़ेगा, पागल है क्या? रिपोर्ट तो आपके पास है, पढ़ो। क्यों पढ़ो? पहली बार एनुअल रिपोर्ट में रिजर्व बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में कुछ गोल्स डिसाइड कर रही है, कुछ गोल्स डिसाइड कर रही है। एंड वन ऑफ द गोल्स दैट दे आर फिक्सिंग इज नजिंग द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टुवर्ड्स मर्जर। दिस इज अ सेपरेट पैराग्राफ, आई कैन रीड आउट। सर मला फक्त फोल्डर पाहिजे है ना, रिपोर्ट में लिखते हैं ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग 2 वजह से है कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं वी आर गोइंग टू पुश यू टू अमालगमेशन, वी आर गोइंग टू पुश यू टू अमालगमेशन। आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल में मर्जर्स और ये सब कम होते गया है, धीरे धीरे कम हो रहा है।
और वो इस तरह से आपकी तरफ देख रहे हैं कि जो एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया है ना, उतना एक ही पैराग्राफ उन्होंने पिकअप किया एनुअल रिपोर्ट में, और वो ये कहते हैं कि एक्सपर्ट कमिटी हैज़ रिकमेंडेड कंसोलिडेशन इन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर्स। का मतलब ये है, इफ यू फॉल फ्रॉम द ग्रेस, your existence will be questioned and nobody is going to save you there. Nobody. इस रिपोर्ट में उन्होंने उनके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर दिए हैं। वो ये कहते हैं कि हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए टेक्नोलॉजिकली स्ट्रेंथन्ड सुपरविजन लाने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि जनरेटिंग रिस्क स्कोर्स फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कल बैंकों के लोगों ने मुझे एक सेशन दिया है, चेंजिंग पैराडाइम इन द आरबीआई इंस्पेक्शन, तो वो तो अलग से मैं बात करूंगा ही, लेकिन ये जो एनुअल रिपोर्ट है ये आप देखोगे तो डरावना है, डरना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ देयर एजेंडा फॉर 2022 to 2023, पेज 143 ऑफ दैट रिपोर्ट, रोल आउट ऑफ की रिस्क इंडिकेटर्स फॉर यूसीबीज इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स। ये जितना भी साइबर सिक्योरिटी में आज हमने देखा ना, वी वेर ऑल यॉर्निंग फॉर द सिंपल रीजन, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना बॉस। अगर ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ जिन बंदों का ये सब्जेक्ट है उनको इसमें निलाना चाहिए। वी शुड पुश देम फॉर द साइबर सिक्योरिटी compliances which are extremely critical, and they are using another terminology for urban cooperative banks. They are saying that 5-pillared strategic approach we have designed for urban cooperative banks, and the title that they have given is GUARD, GUARD, GUARD। और उसका मतलब क्या है? GUARD का मतलब ये है गवर्नेंस ओवरसाइट, यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, appropriate regulation and supervision, robust collaboration, and developing necessary IT and cyber security skills। आपकी साइज कुछ भी हो, आपको ये जो गार्ड वाला झमेला है अगले साल आने वाला है। और एक बड़ी चीज़ मैं रेफ़र करना चाहूँगा, मैं बाकी सर्कुलर्स के बारे में बात करने में कोई मतलब नहीं, अगर किसी को कुछ सवाल हो तो पूछ लो, क्योंकि मैं ये कई बार बोल चुका हूँ। तो एक जो एरिया है, उन्होंने हम सीईओज़ के इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है, जिसमें 15 साल का टेन्योर सीईओ का जो है, उसके बारे में जो चर्चा चल रही है, देयर आर 18 कोर्ट्स इन द कंट्री विच हैव गिवन स्टे ऑन दिस पर्टिकुलर सर्कुलर। और रिजर्व बैंक ने, मैंने पिछले सेशन में कहा था कि रिजर्व बैंक इसमें गलतियां कर रही है। हर एक हाई कोर्ट में जाके रिटन सबमिशन देने के बजाय दे शुड मूव सुप्रीम कोर्ट एंड कंपाइल ऑल द केसेस एट सुप्रीम कोर्ट, गेट अ डिसीजन। अभी 2 महीने पहले रिजर्व बैंक ने वो एक्शन ली है, वो भी बकवास एक्शन ली है, लेकिन उन्होंने जयपुर कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया है कि हाउ दिस सर्कुलर इज राइट, you will find that the arguments made by Reserve Bank of India are unbeatable. All the state law provisions or multi-state law provisions or the provisions of your model bylaws have been quoted that they can issue these guidelines. So possibly ये 18 कोर्ट में से केसेस इकट्ठा होते होते 6-7 महीने लग जाएंगे। 6-7 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, 15 साल तो होके रहेगा, 15 साल तो होके रहेगा। अभी इसके बारे में वो क्या कहते हैं, ये जो 15 साल वाला सर्कुलर उन्होंने इशू किया, लोगों ने बहुत गालियाँ दी रिजर्व बैंक को। उनका इसमें डिफेंस आया है इस एनुअल रिपोर्ट में। वो ये कहते हैं, दिस सर्कुलर वाज इशूड टू एनहांस द गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इन यूसीबीज एंड टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ बीआर एक्ट। वो धीरे धीरे प्यार को बढ़ा रहे हैं आपके ऊपर। तो वो जो प्यार बढ़ा रहे हैं वो ऐसा है कि आज सीईओ के लिए निकाला, डायरेक्टर्स तो शैडो में है ही ना। 8 साल का झमेला हमारे दिमाग में घूमते ही रहता है। 8 साल का, 8 साल के बारे में दे आर थिंकिंग अलॉट, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिसाइड प्रिसाइज टाइमलाइन। आई हैपन टू टॉक टू कपल ऑफ गाइज एंड दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, एंड देन यू हैव फेडरेशन टेकिंग अ डिफरेंट स्टैंड, NAFCP टेकिंग अ डिफरेंट स्टैंड।
the people who are in the know of things. So the expert committee has taken a very simple stand. उन्होंने एक लाइन का स्टैंड लिया है. आपने अगर एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट पढ़ा होगा तो वन लाइन स्टैंड. We endorse the tenure of directors for 8 years. और फिर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारे बायलॉ में तो 5 साल का है, तो 2 टर्म रखो, कम से कम 2 टर्म तो करो, यानी 10 साल का हो जाएगा. हमारे एक अच्छे दोस्त हैं जो इस सेक्टर में काम करते हैं कई सालों से, नाम नहीं लेना चाहूँगा. उन्होंने कहा कि मैं अमित भाई को बोलूँगा, अमित भाई यानी अमित जी शाह, अमित भाई को बोलूँगा कि ये जो प्रोविज़न है ना, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अप्लाई मत करो. अभी वो भी मेरे जैसे कई जगह पे भाषण देते तो ये पोजीशन उन्होंने ले लिया. आपको थोड़ा किस्सा सुनाता हूँ मैं. शायद यहाँ पे गुजरात में से बहुत सारे लोग हैं और मेरा अगर किस्सा गलत हो तो आप मुझे सुधार देंगे. कि जो माधोपुरा हुआ था ना, माधोपुरा, ये अमित भाई शायद सूरत डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन या डायरेक्टर थे और डायरेक्टर भी थे क्योंकि वो गुजरात गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे और मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे. उनको बहुत परेशानी हुई थी, बहुत परेशानी हुई थी. तब से उनके दिमाग में है कि इन सब अर्बन कोऑपरेटिव वालों को ठीक करो. तो ये सब सिलसिला ठीक करने का चल रहा है. हम लोग ठीक होते नहीं होते वो बात अलग है, लेकिन इफ़ यू आर सिंपल फंडा, इफ़ यू आर फॉलोइंग दी रेगुलेटरी गाइडलाइंस, आई सी नो इश्यूज. आई एब्सोल्युटली सी नो इश्यूज. हम लोग क्या करते हैं, हम हमारा दिमाग लगाते हैं and then we go for interpretation of Reserve Bank of India guidelines and then we take the help of a chartered accountant. यहाँ पे अगर कोई CEO होगा तो माफ़ करना, यहाँ पे कोई लॉयर होगा तो मुझे माफ़ करना. हम लोग क्या है, उनके ओपिनियंस लेते हैं and then based on that opinion we try to take an action. Friends, remember, रिजर्व बैंक के किसी भी गाइडलाइन का इंटरप्रिटेशन इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता. वो सिर्फ रिजर्व बैंक कर सकती है, nobody else. ये पक्का ध्यान में रखो. और इसका मैं एक ज्वलंत उदाहरण, ताज़ा उदाहरण देता हूँ. कोविड के दरमियान हुआ था, आपको याद होगा कि कोविड में सबकी हालत ख़राब थी, तो हम लोग कोई एक्सेप्शन नहीं थे. रिजर्व बैंक ने कहा कि ये जो 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड है उसमें का इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट रिफंड करो. आप जो इंटरेस्ट लगा था वो रिफंड करो. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, आपको याद होगा, निर्मला जी हर 2 दिन बाद कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए आ जाती थी और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम लोग ये रिफंड कर रहे हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूड अ गाइडलाइंस फॉर द रिफंड. डिटेल गाइडलाइंस निकालने के बाद में लगभग 8 दिन एक भी बैंक ने कुछ नहीं काम किया उसके ऊपर. दे डिड नॉट एक्ट ऑन दैट सर्कुलर. और अहलूवालिया करके, आपको याद होगा, रेवेन्यू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, अभी नहीं है, अभी शायद रिटायर हो गए, वो उस वक्त थे. उन्होंने आईबीए को फ़ोन किया, यार ये जो बैंक्स है ये मिनिस्ट्री ने जीआर इशू किया उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते. आईबीए ने रिस्पॉन्स सिंपल लिया, यू कैन नॉट इंस्ट्रक्ट बैंक्स, यू हैव नो अथॉरिटी टू इंस्ट्रक्ट द बैंक्स. उसके बाद में 20 दिन के बाद में रिजर्व बैंक ने 2 पैराग्राफ का एक सर्कुलर निकाला, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको दिया है वो करो. एंड देन ऑल बैंक स्टार्टेड वर्किंग. सो दिस इज द पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेक्शन 35 अगर आप पढ़ोगे, दे कैन डू एंड अनडू एनीथिंग. 35A जो भी है वो. आपके यहाँ अगर आपकी बैंक इलेक्शन नहीं लेती है अंडर स्टेट लॉ, यू मस्ट रिमेंबर दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन कंडक्ट इलेक्शन. दे कैन कंडक्ट इलेक्शंस. आपके यहाँ में से अगर किसी डायरेक्टर को बिठाना है प्रोफेशनल 51% का कंप्लाई करने के लिए, तो वो चिट्ठी डाल के जिसका नाम निकलेगा उसको बिठा सकते हैं. प्रोविजन है बीआर एक्ट में, पढ़ के देखो. हम ये सोचते हैं कि चिट्ठी डाल के कैसे होगा, वो हो सकता है, होता है. तो these provisions are there. With such a huge change that is coming up and we are lagging behind. As
अर्बन कोऑपरेटिव बैंकर वी आर लैगिंग बिहाइंड इन मीटिंग दीज चैलेंजेस। अभी जो BR एक्ट में जो चेंजेस आए हैं उसमें अभी पेंडिंग इशू ये 8 साल का है, मान के चलो ये 8 साल का आने वाला है, कल से आएगा या परसों से आएगा मुझे पता नहीं है। ये एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने और एक फोकस लाया है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, वो ये है दे आर गोइंग टू स्ट्रेंथन योर ऑडिट फ्रेमवर्क। आप अगर BR एक्ट ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि इट्स अ मिरर इमेज ऑफ कंपनीज एक्ट। ऑल द प्रोविजंस और मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट आर इन द BR एक्ट, and therefore the idea of having an independent director which is there in the Indian Companies Act will sooner or later will come to you because they are going to cancel the co-option of expert director। आपके बोर्ड में 51% प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, बात खत्म, नो नीड टू co-opt, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज नो नीड टू co-opt इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी हम सबके बैंकों में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है जिसके ऊपर हम सोचते नहीं हैं। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है? तुम्हारा चेयरमैन रिकवरी कमेटी में बैठेगा, तुम्हारा चेयरमैन क्रेडिट कमेटी में बैठेगा, तुम्हारा चेयरमैन अगर CA है तो ऑडिट कमेटी में भी बैठेगा। दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डजंट वांट। Ideally, many cooperative banks are having a concept of independent chairman for an audit committee because they want the audit to be overseen independently and professionally. That being the story, the definition of independent director would be made applicable to urban cooperative banks. वो तुम्हारे कोऑपरेटिव एक्ट में या मल्टी स्टेट एक्ट में क्या प्रोविजन है उससे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? BR एक्ट इज सुपीरियर टू ऑल अदर एक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, वो झगड़े में छोड़ दो कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट, लेट्स कीप इट असाइड। नोबडी हैज मूव्ड द कोर्ट। द मुंबई फेडरेशन वाज ट्राइंग टू मूव द कोर्ट अगेंस्ट द अमेंडमेंट मेड इन द BR एक्ट। मेरा एक ही उसमें सवाल था, यार ये जो BR एक्ट अमेंडमेंट हुआ है ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन क्या है उसे ढूंढो, देन यू चैलेंज। जब तक आपको उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन नहीं मिलता है तब तक सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई गया नहीं, बातें करते रहे सब पेपर में हम लोग ये करेंगे फलाना करेंगे, करने दो, इट्स नॉट ईजी। दैट बीइंग द स्टोरी, ये BR एक्ट अमेंडमेंट होने के पहले भी, BR एक्ट अमेंडमेंट तो 20 में हुआ और आप सबको याद होगा कि आपके सर पे बैठ के BOM का मॉडिफिकेशन आपको बायलॉज में करने के लिए कहा गया। सभी बैंकों ने चुपचाप किया। है क्या स्टेट लॉ में प्रोविजन है? नहीं है। ऑल रजिस्ट्रार्स एक्सेप्टेड इट, ऑल रजिस्ट्रार्स एक्सेप्टेड इट। Where is the provision in the state law or the multi-state law for BOM? It's not there. One whip। ये मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ? बात ये है कि मैं कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी आपसे शेयर करूँगा। उसमें सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है वो ये है कि आपको आपकी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो भी हो, बैंकिंग के बारे में कुछ भी आदेश दे नहीं सकती। They can issue instructions only in respect of election to the members of the board, barring that area। क्योंकि रिजर्व बैंक वो झंझट नहीं चाहती है, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास मशीनरी भी नहीं है। आपने देखा होगा, आप रिजर्व बैंक को कुछ अगर लेटर भेजते हो, प्रपोजल भेजते हो, कम से कम 3 महीने, कम से कम 3 महीने, एंड नो पॉइंट इन फॉलोइंग अप। आपका नंबर जब आएगा तभी वो डिसीजन होगा, हाँ या ना, जो भी है वो। With this superiority of BR Act, आज रिजर्व बैंक के इंस्पेक्शन में कुछ चीज़ों के लिए रिजर्व बैंक आइडेंटिफाई कर रही है कि आप लोग ये BR एक्ट वायोलेशन कर रहे हो। जैसे मेरा इलेक्शन हो गया 2 साल पहले और मेरे बोर्ड में 5-6 डायरेक्टर्स है जिनका 8 साल के ऊपर का टेन्योर है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आ गया
कि you have violated BR Act. They are not taking it to the penalty as yet because they were supposed to issue guidelines, but they are saying this. They are giving you signals, and those signals we have to capture. If we capture those signals, I believe that we will be on the right side of the law. If we are on the right side of the law, it will be possible for us to stay afloat perpetually. धंधे की तो बात ही छोड़ो, तुम्हारा जो धंधा है ना उसकी तो वाट लगा दी रिजर्व बैंक ने. कैसी वाट लगा दी? कंसंट्रेशन रिस्क डायरेक्टिव्स है ना, 0.20% ऑफ योर टायर 1 कैपिटल बाय मार्च 24. तुम्हारी और एक वाट लगा दी है 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. वो आपको क्या कर रहे हैं? वो आपको धीरे धीरे स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर लेके जा रहे हैं. धीरे धीरे आप बड़े लोन देना ही नहीं है. हमारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आया, वो शेयर करता हूँ. देयर इज नथिंग सीक्रेट अबाउट इट. एक ऑब्जर्वेशन ऐसा उनका आया कि तुम्हारे जो टर्म डिपॉजिट है ना वो 70% एक साल के पहले मैच्योर हो रहा है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? अरे हमारा डिपॉजिट का धंधा हम करते ही नहीं, जो आता है वो लेते हैं. योर फोकस नीड्स टू चेंज. यू नीड टू इंश्योर दैट दिस नंबर कम्स डाउन. आई डोंट नो, आई मीन यू कैन investigate your own inspection report and the subtle signals that they are trying to give. They are regulators. They being the regulator, हम लोग ये सोच के चलते हैं कि कैसा होगा, ऐसे नहीं होता है. तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें जो है वो मुझे लगता है कि आपको ध्यान देनी है. 2-3 सवाल जो मुझे पहले ही आए उसके मैं जवाब देना चाहूँगा. एक ऐसा है कि 30 जून के पहले आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पब्लिश करना है. तो कुछ बैंकों ने मुझे पूछा था, सर हमारा एजीएम तो सितंबर में होगा तो पब्लिश कैसे करेंगे? तुम्हारे एजीएम से कोई वास्ता नहीं है. दे आर नॉट बॉदर्ड. योर एजीएम इज एज पर योर स्टेट लॉ. वो पूछेंगे भी नहीं आपको तुम्हारा एजीएम हो गया, क्या पत्थरबाजी हुई, किसने कुर्सियाँ तोड़ी, कोई लेना देना नहीं है. 30 जून के पहले बैलेंस शीट P&L छापो, नहीं तो फेस वायलेशन अंडर सेक्शन 31. सिंपल. हमारे दिल में जो आया वो ऑडिटर को हम लोग अपॉइंट करते थे, वो नहीं होगा अभी. जो बंदा 6 साल आपको नहीं जानता उसको ही आपको अपॉइंट करना है, अच्छा लगे या बुरा, और उसका प्रायर अप्रूवल लेना है. आपके एजीएम होने तक अप्रूवल नहीं आया तो सब्जेक्ट टू आरबीआई अप्रूवल आपको एजीएम में सब्जेक्ट लेना है. सिंपल. बायलॉज अमेंड करने हैं, आरबीआई को पूछो. मेरे एक बंदे ने मुझे ऐसा पूछा कि सर आप ये बोलते हैं बायलॉज अमेंडमेंट हमको आरबीआई का परमिशन लेना चाहिए, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ये? BR एक्ट में तो ऐसी प्रोविजन ही नहीं है. तो वो प्रोविजन कैसी है कि तुम्हारे जो बायलॉज है अंडर सेक्शन 49C, आई मे बी रॉन्ग इन सेक्शन समवेयर अराउंड दैट, 49C में वो ये कहते हैं कि योर बायलॉज आर इक्वल टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और अगर आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में आपको चेंज करना है बैंकिंग कंपनी को तो आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए. उसका कॉरोलरी क्या हो गया? बायलॉज में आपको अगर चेंज करना है तो प्रायर अप्रूवल चाहिए. ये जो सटल चेंजेस हैं ना, ये आपको ध्यान में रखने हैं. आप एक अच्छी बैंक चलाते हैं, आप यहाँ पे हैं क्योंकि आपको अवार्ड मिला है, आप अच्छी बैंक चलाते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें मिस आउट ना हो जाए और उसके ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा. 7:10 हुए. आई वुड लाइक टू लीव 20 मिनट्स फॉर क्वेश्चंस. कुछ बैंकों को रिजर्व बैंक ने एक अभी बीच में इंटरनल लेटर दिया, वो सर्कुलर नहीं है, वो लेटर दिया ऐसा है कि तुम्हारे जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं या फिर तुम्हारे जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे टॉप मैनेजमेंट के कौन लोग हैं, या फिर मेरे पास नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है. अपने पास सभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं ना, क्योंकि हमारे बैंकों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के प्लेसमेंट का कोई ऑप्शन है नहीं या ऐसी कोई प्रावधान है नहीं. इनमें से अगर कोई रिजाइन करता है, मे बी फॉर पर्सनल रीजन, मे बी फॉर एनी अदर रीजन, within 2 days you have to report to your regional office कि ये हमारा
टॉप मैनेजमेंट में, यानी तुम्हारे जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे, जीएम होगा, सीईओ होगा, डीजीएम होगा, जो टॉप मैनेजमेंट में आने वाले बंदे हैं, उसमें से कोई भी अगर रिजाइन करता है, यू हैव टू इन्फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इन 2 days. I do not know whether this intimation has reached you, because this circular is generic and general. This is applicable to entire sector. All regulated entities, NBFC से लेकर के सब, they perceive this as a possible pitfall that has to be tracked by them in time. आपके सीईओ ने अगर रेजिग्नेशन दे दिया, आपका और उनका झगड़ा हो रहा है क्योंकि आप सीईओ जो बोल रहे हैं वो मानते नहीं हैं, या फिर आपका जो रेगुलेशन है उसको आप पकड़ते नहीं हो, दूसरा ही कुछ कर रहे हो, सीईओ ने रेजिग्नेशन दे दिया. They can call explanations from the person who has resigned as well. This is a new thing that has come. तुम्हारे ऊपर शिकंजा पूरा कसा जा रहा है. अगर आप जो रेगुलेशन है उसमें फॉलो अप करते हो या फिर कोई क्रांतिकारी एक्शन नहीं करते हो, कोई परेशानी नहीं है. लेकिन अगर नहीं करते हो तो परेशानी पक्की है. मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश की है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को बार बार कहते रहता हूँ. इसलिए मैं ये चाहूँगा कि अगर आपके दिल में या दिमाग में कुछ सवाल हो, कोई भी छोटा सवाल हो, आप सवाल कितना भी छोटा या बड़ा हो, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ. दिस इज़ ओपन हाउस, ओपन टू यू सर. अगर नहीं है तो बंद कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Sir, can we contact you in some point of time? We raise some question. Sir, I have a YouTube channel where I give my email. I normally don't give contact number, क्योंकि होता ऐसा है कि 7,000 लोग कांटेक्ट करते रहते हैं. मैं मेरा काम नहीं कर पाऊँगा. मुझे मेरी बैंक बोलेगी यार तू घर में बैठ, ये जो चल रहा है नाटक ये बंद कर सब. सो मैं नॉर्मली शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन देर इज़ एन email which is available on my YouTube channel. I respond. I make it a note to respond. मुझे जितना आता है उतने उसके हिसाब से मेरी Say the email address. कैसे बताऊँ, मेरे बीवी का नाम है और उस नाम को मेरा नाम जुड़ा हुआ है. तो ईमेल ऐसा है सुचित्रा अतुल के. Suchitra, SUCHITRA, A common, and then TULK @gmail.com. वो मेरे YouTube चैनल में भी आपको मिलेगा. No, DRT is definitely functional. DRT has a very 24-year-old structure. These are separate courts. And then you have DRT, appellate tribunal in DRT, and beyond appellate tribunal, you have High Court of the state. Anybody can go to DRT. A borrower suo moto can go, or a banker suo moto can go. And the process of DRT starts with the securitization. How it starts? You issue a notice under section 13(4)(c), and then you try to acquire the property. There is an interim process over there. You can acquire the property with the help of the district magistrate or the collector, who has to give you a mandate, and then you acquire the property, sell it. The moment you try to sell borrower's property, he creates dispute, and that's where the DRT steps in. DRT is very much functional. But to be very honest, DRT is one of the useless mechanism and a failed mechanism over the last 20-25 years. It gives you results provided you have connects. They don't have resources present. Whatever be the reason, they have to comply with the provisions of the law. मेरे पास अगर 10,000 अकाउंट है मेरे ब्रांच में और मैं 2 ही बंदे रखता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं ये 10,000 लोगों को बोल नहीं सकता हूँ. That is your internal problem. This is one part of the story. Your question was connected with ARC. Normally, ARC steps in once you sell the assets to them, and what ARCs do, after a period of 3 months, they move to DRT
if the borrower is not compliant. Instead of you moving, ARC moves to DRT because you give all the rights to ARC without recourse. विदाउट रिकोर्स का मतलब ये रिजर्व बैंक क्या कहता है? रिजर्व बैंक ये कहता है कि आप अगर ARC को 85-15% फॉर्मूले से बेचोगे तो वो विदाउट रिकोर्स होगा, अकाउंट वापस तुम्हारे पास नहीं आएगा, अकाउंट नहीं आएगा। लेकिन रिकवरी अगर नहीं आती है तो मुझे SR में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। तो जो बैंकों ने 14 के बाद में 800 करोड़, 900 करोड़, 500 करोड़ जो बेचे हैं ना, वो अभी बुक्स में वापस आ रहे हैं IDR के थ्रू। मैंने what Mangesh Kekre did was one part of the story that you should sell to ARC. I have advised you otherwise for the simple reason, take the call with a pinch of salt. क्योंकि उसमें रिजर्व बैंक ने एक मिनट, उसमें रिजर्व बैंक ने एक जो क्लॉज लाया है बहुत बुरा क्लॉज है। वो आपको प्रोविजन उस अकाउंट के एसेट पे करने को बोल रहे हैं जो आपके बुक्स में एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। The asset which you have hived off to ARC, they are asking you to provide section 77 of that circular, historical, और उसमें बहुत मारामारी चल रही है। मारामारी ये चल रही है कि जिन लोगों ने पुराने सर्कुलर में एसेट बेचे हैं वो कह रहे कि हमको ये अप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त हमने 2015 में ARC को एसेट बेचे थे ये अस्तित्व में नहीं था। मैंने 5-6 बैंक देखे हैं कि उन्होंने गड़बड़ी में ये बेच दिए और अब परेशान है क्योंकि 90% प्रोविजन कर रहा है। एसेट NPA तो गए लेकिन प्रोविजन करना है 10% का एलिमेंट छोड़ के। दे आर बिटवीन डीप एंड डेविल, वो जो इंग्लिश प्रोवर्ब है। सो ARC फॉर अस, गिवन द गाइडेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज नॉट यूजफुल। फॉर कमर्शियल बैंक इट डजेंट मैटर। लेट मी टेल यू व्हाई। The owner of all these commercial banks are government of India. कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। And private sector banks do it on cash, completely do it on cash. ये झमेला ही नहीं चाहिए। तो ARC is a big झमेला। If you want to reduce your gross NPA, do you have a kitty? Surplus bidder कई बैंकों के पास है, अगर है तो करो। So every bank has to evaluate मेरी ताकत क्या है, मेरी हैसियत क्या है, then we can do that. Yes sir. Yes. हाँ? Okay, good. हाँ। करेक्ट। आपका सवाल बिल्कुल है, मैं जवाब देता हूँ ना आपको। तो आपका ये कहना है कि अगर आप डायरेक्टर बनते हो तो आपको फायदा चाहिए, है ना? करेक्ट 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 राइट करेक्ट। आपको यार मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, तो वो रिजर्व बैंक को ये पूछना चाहिए, मैं रिजर्व बैंक नहीं हूँ। तो आप मुझे सवाल ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं रिजर्व बैंक हूँ, मैं नहीं हूँ रिजर्व बैंक, तो मैं आपके जैसा ही हूँ, आपके साथ हूँ। हाँ, तो आपका सवाल सही है। इसमें जवाब एक तरह से आता है। नहीं, अब मैं जवाब दूँ क्या सर? देऊ ना उत्तर? हाँ, देतो उत्तर। तुम्हाला माहिती आहे का, सॉरी, आपको मालूम है क्या कि ये जो यस बैंक वाले कपूर थे, कपूर, राणा कपूर जो अंदर है, मालूम है ना सबको? मैंने नहीं, मैं अलग एग्जांपल दे रहा हूँ सर, वो आपको उसको गलत मत समझना। ये जो राणा कपूर है, इनका है ना 10% होल्डिंग था इस बैंक में, जब बैंक अच्छी थी, आज भी अच्छी है, बुरी नहीं है। तो इनको है ना एक्सटेंशन चाहिए था एमडी के लिए। रिजर्व बैंक ने क्या किया मालूम है आपको? उनको 3% होल्डिंग कम करने के लिए बोला और एक्सटेंशन के लिए ना बोला। एक बात, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल,
अच्छा काम करते हैं, आप डायरेक्टर होके बैंक के इंटरेस्ट में काम करते हैं और आपको ये लगता है कि आपने ये पौधा सींचा है, आपने इस पौधे को बड़ा किया है, राइट? तो ये जो आपने पौधा बड़ा किया है, आपका पौधा बहुत अच्छा है, लेकिन आपके सेक्टर में एक पीएमसी बैंक ने क्या कर दिया? मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नियम क्यों आते हैं? नियम इसीलिए आते हैं कि कोई एक चोर होता है और सबको चोर जैसा ट्रीट किया जाता है। आपके दुख में मैं शामिल हूं, आपके दुख में मैं शामिल हूं, लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप जो पौधे सींचने की बात कर रही है ना, जब तक आप खुद का पैसा लगाते हो कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूछेगी नहीं। आप लोगों के पैसे से कर रहे हो तो ये नहीं होगा। तो इसलिए जो रिस्ट्रिक्शंस आए हैं ना कि आपको कोई लोन स्पॉन्सर नहीं करना है, आपको कोई ऐड नहीं देना है, आपको आप मेरा एग्जांपल कहता हूँ, मेरे बैंक का लाइव एग्जांपल, जो मेरे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो भी समझ पाएंगे, उनको मालूम है। मेरा अभी इंस्पेक्शन हुआ जनवरी में। हमारे यहाँ पे एक डायरेक्टर बंदा था, अच्छा लड़का था, यंग जवान, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन वो एक एनबीएफसी में काम करता था और वो एनबीएफसी एजुकेशन लोन के लेंडिंग में थी। मेरे इंस्पेक्शन में रिजर्व बैंक ने सीरियस नोट दे दिया कि दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड वायलेशन ऑफ डूज एंड डोंट्स गाइडलाइंस एंड द मैटर विल बी एस्केलेटेड टू एनफोर्समेंट डायरेक्टर, वेयर माय बैंक वाज सब्जेक्टेड, पॉसिबली सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट। हमारे बोर्ड ने तुरंत फैसला लिया, बंदे को समझाया, उसने रेजिग्नेशन दे दिया। हमने इंस्पेक्टिंग टीम को बता दिया कि हमारे डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया। ये सच्ची घटना है। मेरे यहाँ पे 2 सीनियर डायरेक्टर्स बैठे हैं यहाँ पे इस फोरम में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमने सिचुएशन क्या कर दी, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। नाउ इफ वी आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड द शिफ्ट दैट द रेगुलेटर इज ब्रिंगिंग, हम ही तो कह रहे थे, हमारे नैफका भी कह रहा था, हमारा फेडरेशन कह रहा था कि हमें ड्यूअल कंट्रोल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रिजर्व बैंक का कंट्रोल चाहिए। लो अभी ये कहाँ आ गए हम। नाउ यू रिलेट दैट हियर। तो जो रिजर्व बैंक कर रहा है ना, और ये सिंपली जो द इवेंट्स एट पीएमसी एक्सपीडाइटेड सर्टेन थिंग्स, दैट्स ऑल। जो शायद बीआर एक्ट आपको पता है नहीं पता है मुझे पता नहीं, 2006 में रिजर्व बैंक ने उनकी वेबसाइट पे एक लीगल और ऐसे डॉक्यूमेंट का किए है, प्रपोज पॉलिसी डॉक्यूमेंट का सेक्शन है। अब वो 2006 या 2007, मेरा साल शायद गलत होगा, आप जाओ उसमें उन्होंने बीआर एक्ट अमेंडमेंट 2006-07 में लिखा था कि हमको ये अमेंड करना है क्योंकि हम लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक भी केंद्र सरकार में बाद में वो सब्जेक्ट नहीं हुआ। लेट्स नॉट टॉक पॉलिटिक्स। हुआ नहीं, हुआ कब? जब पीएमसी की घटना हुई तब उसमें जल्दबाजी, और उसमें कंफ्यूजन क्या था? सबसे बड़ा कंफ्यूजन बताऊं मैं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम तो ये मल्टी स्टेट बैंक को कंट्रोल ही नहीं करते। अरे you remember you had agricultural ministry which had the section of this corporation का जो section है वो agricultural ministry में था, and then probably the then Reserve Bank of India governor stated that we are not in a position to control these banks because we do not have adequate legal powers and therefore we are not in a position to control. रिलेट करो दो स्टेटमेंट्स एंड देन यू विल रियलाइज बीआर एक्ट लाया। और बीआर एक्ट लाया उसकी कथा अलग ही है। वो मेरे किसी भी यूट्यूब पे आप जो वीडियो देख के सुन लो कि बीआर एक्ट की कथा क्या है। शायद आज नहीं बोल पाऊंगा, यू कैन वॉच दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो चल रहा है वो चलने दो।
Nobody will respond from Reserve Bank. आपकी कौन सी बैंक है? राजस्थान। आप चुप रहो, मैं चुप रहूंगी, कुछ नहीं करना है उसमें। नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ ना। सी आई टेल यू देयर वर सेवरल थिंग्स। देयर इज हमारे यहाँ कोकड़ में एक बैंक है, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, शायद वो यहाँ पे होंगे या कल आएंगे, राजापुरा रूरल बैंक। उनके भी एमडी की सेम स्टोरी है, फॉलोअप कर रहे हैं, रिस्पांस नहीं आ रहा है, यू बिल्ड रिकॉर्ड, बात खत्म। रिजर्व बैंक इंटरव्यू लेगी एमडी का? अरे बिल्कुल, ये नया ज्ञान है सर, मैडम ये नया ज्ञान दे रही है आप मुझे, मेरा तो टेंशन ही बढ़ गया। Who they called you up on all these questions? ये क्या हो गया है रिजर्व बैंक को? बिल्कुल मत पालो टेंशन। यहाँ पे एक बैंक है, वो ऐसी है कि उनको जवाब नहीं आ रहा है, वो एक बैंक है। एक बैंक को जवाब आ गया, जोशी साहब मुझे बता रहे थे सवेरे कि क्या जवाब आ गया है कि ये मामला कोर्ट में है, जब सुलझ जाएगा तब हम आपको बताएंगे। अरे तब तक क्या करने का? इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फॉर्म्स कि जब तक ये कोर्ट में मामला सलटता नहीं है हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम चुप बैठेंगे, ठीक है। यू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग पोजीशन, सिंपल। लेकिन आप 70 साल के ऊपर नहीं होगी तो हाँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी, एब्सोल्युटली डोंट वरी। नहीं, बाकी पे स्टे लागू नहीं है। यू हैव टू अप्लाई, you have to comply with the regulatory guidelines. Unless your bank has obtained the stay, you continue to follow the guidelines. Let them say you don't have to do anything. Let Reserve Bank of India take a call. You don't take a call. You comply. Simple. आप नैफकप में मैटर उठाया है क्या? आपको मैं ज्योतिंद्र भाई मेहता का नंबर देता हूँ, मैं भी बात करूँगा। हाँ, तो फिर कोई सवाल नहीं, उनसे बात करो, बिकॉज दे कैन प्लीड योर केस। यस, एवरी ईयर। एवरी ईयर बैंक ने किस लिए? नहीं, लैंड लिया था वहाँ पे। नोटबंदी में लैंड लेके क्या करने वाली थी आप? यू कांट डू दैट, दैट इज एन एक्ट विच इज बियॉन्ड BR एक्ट, दैट इज वायलेशन। अलग से बात करेंगे, आई सी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर, अलग से बात करेंगे। थैंक यू। नाइक सर, मुझे लगता है कि हम लोग रुकते हैं, काफ़ी समय भी हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।